Very good morning, student. So again we continue our chapter, that is how do organisms reproduce. Okay, in this chapter, in previous class I teach you about sexual reproduction in flowering plants. Okay, and in today's class we studied about sexual reproduction in human beings. Okay, so before starting today's topic, first we revise those things which I teach in previous class. So I teach you about sexual reproduction. Okay, first of all, you have to understand what is sexual reproduction. Okay, so sexual reproduction is the reproduction in which first characteristics is two parents involved. Okay, two parents are involved. Two parents involved. Then second characteristic is what? These two parents are of opposite sex. These two parents are of opposite sex. Okay. Then third characteristic is what? Formation of what? Formation of gamete. Formation of gamete takes place. Okay, so these three main characteristics of sexual reproduction, that is two parents involved, then they are of opposite sex, and the formation of gametes takes place. Why formation of gamete takes place? Because in sexual reproduction fusion of gamete occur. Okay, so in male the male gamete is sperm and female gamete is ova. Okay, ova means egg also. Okay, so these two gametes are get fused, then the process of sexual reproduction is occur. Okay, now after sexual reproduction we studied this sexual reproduction in flowering plants. Okay, so you know very well the structure of flower. So I draw the structure of flower first. This is what? This is a female reproductive part of a flower. You know very well flower is also sexual and unisexual and bisexual. Okay, unisexual, you know very well what happen in unisexual. Unisexual means single gamete, single sex present, and bisexual means both sex are present. Okay, so in this flower both sexes are present. Okay, so this is a typical structure of a flower. Okay, here now labeling. So first of all, this part is known as what? Petal. This is what? Petal. Okay, then this green leafy structure is known as sepal. Okay, this green leafy structure is known as sepal. Okay, after this, now the reproductive part. This is sepal petal. Now the reproductive part of female. So we change the color. So this first structure is known as stigma. This first structure is known as stigma. Then the second structure is known as style. Okay, this second structure is known as what? Style. And the third swelling structure is known as ovary. This is black, that's why it can't see. Ovary. Okay, inside the ovary what happened? Female gamete present, that is egg. Okay, now the male part is this is known as anther. Okay, then this is filament. Anther is attached with what? Filament. Okay, then this anther and filament collectively known as what? Stamen. Okay, so first you revise those things. First, this is a female reproductive part in which stigma, style and ovary present. Okay, and this is male reproductive part in which anther and filament present. Okay, now we studied it separately. So first I draw the structure of female reproductive part.
This is the female reproductive part. Okay, so here this is known as stigma. This structure is known as what? Stigma. It is sticky in nature. Okay, then the second structure which attach stigma and ovary is known as style, and the third swelling structure is known as ovary. Inside ovary what is present? Ovule is present. Okay, this three structure collectively called, this three structure is collectively called what? Collectively it is known as pistil. Okay, collectively it is known as pistil. So if question asks what is female reproductive part in flowering plant, so you write pistil, and inside the pistil three structures are present, three parts, that is stigma, style and ovary. Pistil is also known as what? Carpel. Pistil is also known as carpel. Okay, so please remember this term. So this is overall description about what? Female reproductive part of a flower. Now the male reproductive part is, okay, here this is what? This is anther. This is anther. Okay, then this second structure is known as filament. This second structure is what? Filament. This anther and filament is collectively, these two structures are come in what? Stamen. So if question asks write the male reproductive part of a flower, so what is male reproductive part? Male reproductive part is called stamen, and inside stamen two parts are come, that is first is anther and second is filament. Anther where what present? Anther where pollen grains are present, and filament attached or carry what? Anther. Okay, so this is overall description about the male reproductive part of a flower. Now in flower the reproduction process occur through pollination, through the process of what? Pollination. Okay, what is pollination? Pollination is transfer of pollen grain, transfer of pollen grain from where pollen grain is present? Anther. From anther to stigma. Okay, so pollination is what? Transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower is called pollination. Okay, now this pollination is also of two types. This pollination is also of two types. Okay, these two types are, one is self pollination and other is cross pollination. Okay, so self pollination and cross pollination occur when in self, you know very well self means what? Self pollination in which a plant, you know very well, in plant both sexes are also present and a single sex is also present. So those flower in which both sexes are present, that is bisexual flower, what happen? Mostly self reproduction, self pollination occur, and in unisexual flower cross pollination occur. Okay, so during self pollination what happens? Same plant flower get reproduce. Okay, same plant flower get reproduced, then they came in self pollination, and if two different plants flower get reproduced, then they are called cross pollination. Okay, so this is overall description about previous class. Now our today's class topic is, okay, I revised this through diagram also. So this is imagine this is a plant or this is flower. Okay, this is one plant. Okay, and this is other plant, but these both plant are of same species. Okay, these both plant are of same species. Now here is the stigma or ovary all present. So from this flower pollen grains comes to this flower ovary. Okay, then this is known as what? Cross pollination. When in two different plants the pollination process occur, then this is known as cross pollination. Okay, but if pollination process occur in, this is a plant, in this so many flowers are also present.
So here so many here leaves are also in pink color. Okay, so please don't mind it. Here this is a flower, or this is bisexual flower. Okay, then in this plant what happen, if reproduction process, if pollination process occur in this two flower, in between this two flower or between this two flower, okay, or in some time pollination occur in this, only in this flower, because both sex are present, that is both reproductive organ are present, male and female. So reproduction occur in this single flower or in this two flower of same plant. So this type of reproduction is known as what? This type of reproduction is known as self pollination. Okay, this type of pollination is called self pollination. So now you understand what is self pollination and cross pollination. Now we start our today's topic. Okay, reproduction in human beings. Okay, so before reproduction we have to study what is puberty, because during reproduction process puberty stage comes. Okay, so let's read. Human beings are complex animal, and hence there is a distinct phase in their life cycle which marks the onset and attainment of sexual maturity. This period is called puberty. It usually starts at around 10 to 11 years of age in girls sorry, and at around 12 to 13 years of age in boys. It usually ends at around 18th year of age in girls and at around 19th year of age in boys. Since the years during puberty and in teens, hence this phase is also called teenage. Okay, so you know very well these things. What happen? ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आप लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर देखे ही हो, ठीक है. लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपने डिफरेंट सिस्टम्स देखा है, किसके? ह्यूमन बींग्स में, या फिर जो हायर लेवल के एनिमल्स हैं उनमें. तो आप मतलब इनकी इतने सारे इनमें सिस्टम प्रेजेंट हो, और सारे सिस्टम अपना अपना काम अपने टाइम पे करें, भले आप उसमें ध्यान दो चाहे ना दो, ठीक है ना. तो एक कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है कि नहीं बॉडी के अंदर, अपने आप ही उसका काम चल रहा है. तो ये इस तरह से ह्यूमन बींग्स को क्या कहा जाता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है जिसमें इतने सारे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं और वो सिस्टम अपना कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं. ओके, देन क्या बता रहा है कि ये जो ह्यूमंस होते हैं इनमें बहुत से फेजेस होते हैं, उनके लाइफ साइकिल के दौरान बहुत सारे फेजेस आते हैं, ठीक है ना. और ये जो फेजेस हैं जैसे कि हम कौन से प्यूबर्टी स्टेज की बात कर रहे हैं, तो प्यूबर्टी स्टेज जो है उसको वो क्यों आता है? ताकि जो ह्यूमन है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या हो जाए? सेक्सुअली मैच्योर हो जाए. ओके, सेक्सुअली मैच्योर क्यों हो जाए भाई? सेक्सुअली मैच्योर इसलिए हो जाए क्योंकि अगर वो सेक्सुअली मैच्योर होगा तभी तो क्या होगा, आगे की जनरेशन आएगी. ओके, दैट्स वाई वो क्या हो जाए? सेक्सुअली मैच्योर हो जाए. तो डिफरेंट लाइफ साइकिल आते ही हैं ह्यूमंस में. जैसे कि फर्स्ट क्या होता है, जो बेबी बॉर्न हुआ, न्यू बेबी, ठीक है ना. तो फर्स्ट उसका वो स्टेज हो गया, जैसे हम उसको बेबी ही बोल देते हैं, ठीक है. देन फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है. उसके बाद फिर क्या होता है, उसका प्यूबर्टी स्टेज आता है जिसको हम टीनेज कहते हैं. टीनेज के बाद फिर क्या आ जाता है? एडल्ट स्टेज आ जाता है. एंड आफ्टर एडल्ट स्टेज व्हाट हैपन? ओल्ड एज केम. ओके, सो from childhood to old age so many phases are come in humans. Okay, so therefore it is known as different distinct life cycles are present in human. Okay, now the period जो पीरियड है जिसमें क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योरिटी आने लगती है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी कहते हैं. ओके, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं. और ये जो गर्ल्स है और जो बॉयज़ है, मीन्स मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग एजेस में स्टार्ट होती है. मीन्स कुछ ही डिफरेंस है. जैसे कि जो गर्ल्स है उनमें कब स्टार्ट हो जाता है? 10 to 11 ईयर्स की जब गर्ल्स होती हैं तो उनमें प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होना मीन्स व्हाट, मतलब उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं. मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बताया था कि फीमेल, अच्छा ये आपको नहीं 12th में बताया है. देखो आगे आप पढ़ोगे इस चीज़ को. मेल में क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. स्पर्म क्या है? गैमेट है, मेल गैमेट, ठीक है. और फीमेल में क्या होता है? एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना. तो देखो ये जो मेल और फीमेल में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये डिफरेंट टाइम में होता है. कब? जब फीमेल जो होती है, फीमेल जब फीटल स्टेज में रहती है, मतलब जब वो अपने मदर के यूट्रस में होती है, तभी उसमें क्या हो जाता है? एग फॉर्म हो जाता है. इस चीज़ को आप प्लीज़ रिमेंबर करिए, ठीक है.
जो फीमेल होती है वो जब अपने मदर के यूट्रस में प्रेजेंट होती है, मतलब उसका जब एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट चलता रहता है, उसी दौरान क्या हो जाता है उसी दौरान क्या हो जाता है कि जो एग है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है, फीटल में ही, मतलब फीमेल फीटल में, ओके। और जब वो प्यूबर्टी स्टेज में आती है तो वो एग क्या होता है, मैच्योर होकर रिलीज होना शुरू होता है। बट मेल में क्या होता है, मेल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसके फीटल स्टेज में स्पर्म फॉर्म होकर रह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनमें सब चीज़ कब होता है, जब उनका प्यूबर्टी स्टेज आता है, ओके। तो ये एक बात था जो मैंने आपको बताया। नाउ कम इन टॉपिक। तो क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं, मीन्स जो फीमेल होती हैं, उनमें प्यूबर्टी स्टेज कब स्टार्ट हो जाता है, जब वो 10 to 11 ईयर्स की होती हैं, उस दौरान उनमें प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाता है। और मेल में यही प्यूबर्टी स्टेज 12 to 13 ईयर्स में स्टार्ट होता है, मतलब वो 12 साल के या 13 ईयर्स के रहते हैं, तब क्या होता है, उनका प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाता है। और ये एंड कब होता है, जब वो कितने साल के हो जाते हैं, 18, ओके। जब 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो ये जो प्यूबर्टी स्टेज है वो क्या होती है, एंड होती है। तो इतने सारे स्टेज, जो ये प्यूबर्टी वाली स्टेज स्टार्ट होती है उसको हम और क्या कहते हैं, टीनेज भी कहते हैं। यू नो वेरी वेल दिस थिंग्स, ओके। तो क्या बता रहा है कि गर्ल्स में 18 ईयर में क्या होता है, प्यूबर्टी स्टेज एटलीस्ट पूरी तरह से हो जाता है, और बॉयज़ में 19, क्योंकि बॉयज़ में थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स वाई थोड़ा लेट से ओवर होगा, और फीमेल में थोड़ा पहले स्टार्ट हो रहा है, तो 1 साल पहले उनमें ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये जो प्यूबर्टी एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, टीन्स कहते हैं, और इस फेज को हम क्या कहते हैं, टीनेज कहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज जो चेंजेस दिखाई देते हैं प्यूबर्टी स्टेज के दौरान, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, ओके। तो उसको देखते हैं हम। तो चेंजेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी, बॉयज़ में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं हमको, द बॉयज सडनली ग्रो इन हाइट ड्रामेटिकली, voice becomes deep and the Adam's apple becomes prominent. Shoulders become broad and body becomes muscular. Facial hairs begins to grow. Hair also grow under the armpit and in the pubic region. So क्या बता रहा है कि जो चेंजेस बॉयज़ में हो रहे हैं कब, प्यूबर्टी के दौरान, तो उनमें क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी हाइट ड्रामेटिकली मतलब एकदम सडनली क्या होने लगती है, हाइट उनकी बढ़ने लगती है, ओके। देन ये तो फर्स्ट हो गया। देन सेकंड क्या होता है, उनमें जो उनकी वॉइस है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है। मतलब जैसे आप देखते हो ना, फीमेल की वॉइस जो होती है बहुत ज़्यादा पिच होता है उनकी वॉइस में, ठीक है ना, बट मेल की वॉइस कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, अगर हिंदी में कहें तो भारी हो जाती है, ओके। देन ये एडम्स एप्पल की बात की है। एडम्स एप्पल जो होता है वो क्या होता है, उनके नेक पोर्शन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। इसी कारण से क्या होता है, ये एडम्स एप्पल लैरिंग्स को भी कहते हैं, ओके। तो वही क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसके कारण इनकी आवाज़ में चेंजेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है कि इनके जो शोल्डर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, बॉडी एकदम मस्कुलर हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा फेस में उनके हेयर ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थे, मेल के थे, ठीक है ना। मेल में क्या क्या हो रहा है, हाइट चेंज हो, मतलब हाइट ड्रामेटिकली क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है, वॉइस डीप हो रहा है, एडम्स एप्पल जो है प्रोमिनेंट हो जा रहे हैं। उसके अलावा शोल्डर जो है ब्रॉड हो रहा है, बॉडी मस्कुलर हो जा रही है, फेस में हेयर ग्रो करने लग रहे हैं। उसके अलावा हेयर जो है वो आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर जा रहे हैं, ओके। देन गर्ल्स में जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, तो क्या होता है गर्ल्स में, द वॉइस बिकम्स थिन, shoulders and hip become rounded, breast get enlarged, hair grow under the armpit and pubic region. So क्या हो रहा है गर्ल्स में भी, उनकी वॉइस जो हो रही है वो जिस तरह से बॉयज़ की वॉइस क्या हो रही थी, डीप हो जा रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा भारी हो जा रही थी, बट गर्ल्स की वॉइस क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, पिच एकदम तेज़ होता है उनका, ठीक है ना, इसलिए गर्ल्स चलाती हैं तो एकदम कान में गड़ता है, ओके। तो ये होता है किसमें, गर्ल्स में। उसके अलावा उनके शोल्डर्स और हिप रीजन जो है वो क्या हो जाते हैं, थोड़े राउंडेड फॉर्म में हो जाते हैं। बॉयज़ में क्या हो रहा था, वो थोड़े क्या हो रहे थे, ब्रॉड हो जा रहे थे, ठीक है ना, वो क्या हो जा रहे थे, ब्रॉड हो जा रहे थे। देन इन ब्रेस्ट जो होता है वो क्या होने लगता है, एनलार्ज होने लगता है, ठीक है। और हेयर जो है आर्मपिट और प्यूबिक रीजन में ग्रो कर जाता है, ओके। तो ये किसका था, फीमेल का था। देन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, the physical dissimilarities in the male and female of a species which give them different appearance is called sexual dimorphism, okay। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेक्सुअल मतलब कि कुछ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे,
और डाइमॉर्फिज्म कह दिया मतलब कि दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे। ओके, तो आप देख ही रहे हैं मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंसेस दिखना शुरू हो जा रहे हैं, ठीक है ना, कौन से एज में, प्यूबर्टी स्टेज से। ओके, तो ये जो डिफरेंसेस जो दिख रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है ना। जो डिसिमिलरिटी हमको मेल और फीमेल में दिख रही है उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीचर्स विच हाईलाइट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसको कह रहे हैं, वो सारे फीचर्स को, वो सारे कैरेक्टर्स को जो कि क्या कर रहे हैं, ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है उसको शो कर रहे हैं। मतलब कि गर्ल्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बॉयज़ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनको जो शो कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज व्हाट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये सब टर्म्स जो है आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। ओके, नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यू नो वेरी वेल कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत से पार्ट्स होते हैं, तो आज मैं बस एक ओवरव्यू दे देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊँगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू में देख लीजिए। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूसेस द मेल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड स्पर्म एंड द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। तो क्या बता रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। एक पेयर ऑफ टेस्टिस मीन्स व्हाट, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होंगे क्योंकि पेयर में प्रेजेंट है, दैट्स वाई अगर काउंट करेंगे तो कितने टेस्टिस हो जाएंगे, 2 टेस्टिस। ओके, अब ये जो टेस्टिस होते हैं यही क्या करते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और इसी में हार्मोन रहता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेल हार्मोन है। ओके, देन इट कंटेन इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस। तो देखो, सबसे पहले हमको ये तो पता चल गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, एक पेयर टेस्टिस का प्रेजेंट है। ये जो टेस्टिस का जो पेयर है उसमें ही क्या होता है, स्पर्म फॉर्म होता है और हार्मोन प्रेजेंट होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो टेस्टिस है ये क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। ओके, तो उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ये स्क्रोटम का भी बहुत ज़्यादा बड़ा यूज़ है। ये स्क्रोटम में क्यों सराउंडेड रहते हैं, क्योंकि स्क्रोटम जो होता है वो क्या करता है, जो हम लोगों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ व्हाट, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये 37 जो स्पर्म जब रिलीज़ होता है तो स्पर्म को रिलीज़ करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। दैट मीन्स 35 डिग्री सेल्सियस या 34 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना, तभी क्या होता है, स्पर्म रिलीज़ होता है। तो ये जो कम टेम्परेचर है ये बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम करता है, कौन हेल्प करता है, स्क्रोटम करता है। इसलिए टेस्टिस जो होता है वो क्या होता है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। ओके, देन फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस। अब ये हर एक मतलब 2 टेस्टिस प्रेजेंट है तो दोनों से क्या क्या होता है, एक एक वास डिफरेंस जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि टेस्टिस में तो स्पर्म फॉर्म हो गया बट अब स्पर्म को रिलीज भी तो होना है, तो उसको कुछ ना कुछ एरियाज तो चाहिए, कुछ ना कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो चाहिए जिससे वो रिलीज आउट होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो कहाँ आ जाता है, वास डिफरेंस में आता है। ठीक है, इट जॉइंस द यूरेथ्रा। अब ये वॉइस डिफरेंस जो है वो किससे जॉइन होता है, यूरेथ्रा से। द यूरेथ्रा इज इंक्लोज्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। इट हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड जेनाइटल पोर. The seminal vesicles and prostate gland produce fluids which provide nutrition and help in movement of the sperm. उसके बाद क्या बता रहा है कि जो सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ये ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड है मतलब कि वो क्या रिलीज़ करेगा, हार्मोन रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। तो ग्लैंड से कुछ फ्लूइड रिलीज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, किसको, जो नया स्पर्म फॉर्म हुआ है उसको, ठीक है ना, क्योंकि स्पर्म को क्या हो रहा है, इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए भाई ग्रोथ के लिए, मूवमेंट के लिए, क्योंकि मेल गैमेट ही तो हमेशा कहाँ जाता है, फीमेल गैमेट के पास जाता है। ओके, तो इनको न्यूट्रिशन मिलेगा तभी तो इनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तभी इनमें क्या होगा, मूवमेंट होगा। ओके, तो ये एक ओवरव्यू डिस्क्रिप्शन था किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको हर एक ऑर्गन को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी विथ स्ट्रक्चर। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। आई एक्सपेक्ट कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और मैं बार बार कहती हूँ इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप तो वीडियो तो फिर से देख ही सकते हैं, बट अगर फिर भी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मतलब
व्हाट्सएप में कि मैम ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, फिर से इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको उस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो मैं एज़ यूजुअल बोलती हूँ, कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे विथ डायग्राम। ओके, और आपको कैसी कॉपी बनानी है ये तो पता ही है। प्रैक्टिकल कॉपीज़ जो होती हैं मीन्स एक तरफ ब्लैंक पेजेस होता है और एक तरफ लाइनिंग पेजेस होता है। लाइनिंग पेजेस में आप पूरा रिटन वर्क करेंगे और ब्लैंक पेज में आप पूरे डायग्राम्स बनाएंगे। ओके, so keep studying. Today's class is over. Okay, thank you, have a nice day.